Hello everyone. Today we are going to study about the anatomy and physiology of the ear. Okay, so let's proceed about the topic. So ear. The ear is the organ of hearing and is also involved in balance. It is supplied by 8th cranial nerve, that is the cochlear part of the vestibulocochlear nerve. Okay, so ear जो है hearing के लिए responsible एक organ है और it is also responsible for our balance, है ना, और इसको 8th cranial nerve सप्लाई करता है जिसका नाम है vestibulocochlear nerve, और जो cochlear part है बेटा उसके थ्रू जो hearing है वो possible होता है. So the ear is divided into 3 parts. So outer ear, middle ear, that is tympanic cavity, and the inner ear. Okay, so let's study about the structure of the ear. So here you can see a diagram of the structure of the ear. In this diagram you can see that part is the external ear and the red is the middle ear and the outer innermost is the your inner ear. Okay, so this one is the external, now middle and the internal ear. So in the external ear you can see there is external auditory canal is there, tympanic membrane is there. In the middle ear, that is 3 bones, malleus, incus and stapes are there, tympanic membrane से attach है जो. और in the inner ear you can see the semicircular canals and cochlea and the vestibule. Okay, so the cochlea and vestibule, the attached nerve is the vestibulocochlear nerve. So vestibular branch is attached to the semicircular canal and the cochlear branch is attached to the cochlea. So we are going to study about this structure of the ear. Okay, so this is also the structure of the ear, you can see here. Now first part is the outer ear. The outer ear consists of the pinna and the external auditory canal. So first one is the pinna, or the we can say auricle. The pinna is the cartilage of the ear. It acts as a funnel to capture the sound. So pinna जो है सबसे outermost part है funnel shape का, जो मेन फंक्शन है इसका साउंड को कैप्चर करना. इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विद द स्किन. इट इज़ डीपली ग्रूव्ड एंड रिज्ड. द मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर रिज इज़ द हेलिक्स. सो आपका फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज से ये कवर है बेटा. इसमें मेन जो कंपोनेंट है पिन्ना का, दैट इज़ दी इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज, और कवर्ड रहता है ये स्किन से. और इसके अंदर को जब ध्यान से देखेंगे हम लोग तो इसमें डीपली ग्रूव्ड और रिजेस जो है वो प्रेजेंट है, और सबसे अपर मोस्ट जो आउटर प्रोमिनेंट जो रिज है उसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन थ्रू द आउटर ईयर ऑकर्स चीफली थ्रू द एयर. सो जो साउंड वेव्स हैं वो एयर के थ्रू वाइब्रेटिंग जो साउंड है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करके इसी आपके पिन्ना के थ्रू क्या होता है वो कलेक्ट होता है और फिर ईयर में एंटर करता है. नाउ द लोब्यूल, द ईयर लोब इज़ द सॉफ्ट प्लायबल पार्ट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, है ना, जहाँ पे आप ईयर रिंग पहनते हैं. सो दैट पार्ट इज़ कॉल्ड द ईयर लोब, और सॉफ्ट पोर्शन है लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द ईयर का. एंड it gathers the sound waves, aids in localization and amplifies sound approximately 5 to 6 decibels. So आपका जो पिन्ना है उसका मेन जो फंक्शन है ये साउंड वेव्स को गैदर करता है और मेन लोकलाइजेशन में ऐड करता है, एड करता है, मदद करता है पर्टिकुलरली साउंड को लोकलाइज करने के लिए. और आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 टाइम्स उसको डेसिबल मोर बढ़ा करके आपके साउंड को एम्पलीफाई करके आपके कान तक क्या करता है वो पहुंचाता है. So this is the structure and function of the pinna. Okay, now external auditory canal. So through the pinna, है ना, आपका outer ear जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद एक canal continue होती है inner side में, that is called the external auditory canal, and it is approximately 1 inch long. 1 इंच लंबा होता है, slightly S shaped का होता है. Outer 1/3 is surrounded by cartilage and inner 2/3 by the mastoid bone. सो जो आउटर 1/3 पोर्शन है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का वो कार्टिलेज से सराउंडेड है, और जो इनर 2/3 जो पार्ट है बेटा दैट इज़ बाय द मेस्टॉइड बोन. एंड अलाउस एयर टू वार्म बिफोर रीचिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इसका जो मेन फंक्शन है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का, ये आपका एयर को क्या करता है, वार्म करता है बिफोर आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वो टच करे. नाउ आइसोलेट्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम फिजिकल डैमेज. सिरोमिनस ग्लैंड मॉइस्टन सॉफ्टन स्किन ऑफ कैनाल. सो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पहले आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में सिरोमिनस ग्लैंड होते हैं जो आपका स्किन को मॉइस्टन करने का या फिर सॉफ्ट करने का काम करते हैं. नाउ यहाँ पर आपका सिरोमिनस जो ग्लैंड है इट सिक्रीट्स सम वैक्स दैट इज़ कॉल्ड दी सिरोमेन या फिर ईयर वैक्स
यहाँ पर सिक्रीट होता है। सो इट इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है और हर पर्सन के अंदर में ये सीरोमेन जो है वो सिक्रीट होता है इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो जो डस्ट पार्टिकल हैं या जो माइक्रोब्स हैं इस सीरोमेन में क्या हो जाता है, ये स्टिक आउट हो जाता है, जो आपके कहाँ तक नहीं जा पाएगा, मिडिल ईयर या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नहीं जा पाता है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कम्प्लीटली सेपरेट्स द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस फ्रॉम द मिडिल ईयर, इट इज़ ओवल शेप्ड। सो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है आपका एक्सटर्नल अकॉस्टिक जो मीएटस है उससे आपके मिडिल ईयर को टोटली क्या करता है, सेपरेट करता है। सो एक दीवार बोल सकते हैं हम लोग कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है एक आपके वॉल की तरह एक्ट करता है इन बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडिल ईयर। नाउ इट इज़ ओवल इन शेप, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इट इज़ इन ओवल शेप्ड। ओके, सो हियर यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, सी हियर दैट इज़ दिस वन इज़ द पिन्ना, है ना, आउटर पोर्शन इज कॉल्ड द पिन्ना, और जो सबसे प्रोमिनेंट पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, है ना। और आपका ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो आपका स्लाइटली एस शेप का होता है और इट इज़ कंटिन्यूस विद द, यहाँ पर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिया हुआ है। सो द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है आपका एक वॉल की तरह एक्ट करता है इन बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द दिस वन इज़ द मिडिल ईयर, उनके बीच में, ठीक है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है एग्जैक्टली एयर इसी के थ्रू आपका स्ट्राइक करता है, वाइब्रेट करता है और फिर साउंड वाइब्रेशन को आपके मिडिल ईयर में ट्रांसफ़र कर देता है। आपके इसी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में यहाँ के वॉल में आपके सीरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स को क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में सिक्रीट करते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। नाउ अबाउट द मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, है ना, बिकॉज आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल है उसका जो 2/3 जो पोर्शन है दैट इज़ मेड अप ऑफ द मेस्टॉइड बोन। सो द मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन हम लोग पढ़ेंगे। बोनी रिज बिहाइंड द ऑरिकल, हार्डेस्ट बोन इन द बॉडी, प्रोटेक्ट्स कॉक्लिया एंड द वेस्टिबुलर सिस्टम। सो आपका एक बोनी रिज है ऑरिकल के पीछे, आपके कान के पीछे आप जब फील करेंगे उंगली रख करके, सो आपका एक हार्डेस्ट बोन जो है वो फील होगा और यही है आपका मेस्टॉइड प्रोसेस, है ना। और ये एग्जैक्टली प्रोटेक्ट करता है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर सिस्टम, जो इनर ईयर का जो पोर्शन है उसको अपने में ये सुरक्षित रखता है। नाउ प्रोवाइड सपोर्ट टू द एक्सटर्नल ईयर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी, एंड ऑल्सो इट कंटेन्स एयर कैविटीज़ विच कैन बी रिजर्वायर फॉर इन्फेक्शन। सो आपका एग्जैक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल ईयर को और जो मिडिल ईयर का जो पोस्टीरियर वॉल है उसको। नाउ इसमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है जो कि आपका एक रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है और कभी कभी वहाँ पर इन्फेक्शन भी एसेंड हो सकता है। सो मेस्टॉइड प्रोसेस में या मेस्टॉइड बोन में अगर इन्फेक्शन एंटर कर गया दैट इज़ कॉल्ड दी मेस्टॉइडाइटिस करके कंडीशन जो है वो क्या होता है, अराइज होता है। सो दिस इज़ अबाउट द मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। हियर यू कैन सी behind the ear that is mastoid bone is there in the diagram you can see, and in the uppermost diagram you can see there are air sacs are there, है ना, आपका bony air sacs are there। सो बिहाइंड द ईयर मेस्टॉइड बोन इज़ प्रेजेंट, है ना। मेस्टॉइड एयर सेल्स को आप डायग्राम में देखिए और ये एयर सेल्स जो है मे भी अगर इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पर आके ऑक्यूमुलेट हो गया, सो इट इज़ causing a condition known as the mastoiditis. Okay, so this is about your mastoid bone. So we are finishing the external ear, now coming to the middle ear. So the middle ear is an air filled space with structures. The tympanic membrane eardrum vibrates in response to sound. So the middle ear है वो क्या है बेटा, एक air filled space है with the lots of structure are there. mainly आपके सबसे smallest जो bone होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि आपका एक्सटर्नल ईयर को और मिडिल ईयर को जोड़ने के बीच में एक वॉल की तरह जो एक्ट करता है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं जो कि वाइब्रेट होता है आपके साउंड के रेस्पॉन्स से। नाउ इट अटैचेस टू इट आर 3 बोन्स, है ना, आपके इससे आपके 3 बोन अटैच हैं। फर्स्ट जो है मैलियस जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं, सेकेंड इज़ द इंकस दैट इज़ एनविल, एंड द थर्ड वन इज़ द स्टेपिस दैट इज़ कॉल्ड द स्टिरप्स are the smallest bone in the body. Together they are only 1 inch long. एक साथ जब हम इनकी लंबाई को देखेंगे तो सिर्फ 1 इंच लॉन्ग रहता है और सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन है बॉडी के वो है आपके यही बोन। Their function is to amplify sound vibrations. The malleus vibrates the incus which vibrates the stapes. So मेन जो फंक्शन है आपके मिडिल ईयर का
आपके मिडिल ईयर के बोन्स का, ये एग्जैक्टली साउंड को एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मतलब आपके साउंड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं वाइब्रेशन को, है ना। और आपका जो मैलियस वाइब्रेट करता है इंकस को और विच वाइब्रेट्स द स्टेपिस, और दोनों एक साथ आपके स्टेपिस बोन को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सो जैसे ही जो एयर है साउंड वेव्स को लेकर के टिम्पैनिक एक्सटर्नल एयर से ऑडिटरी कैनाल से ट्रैवल करते हुए कहाँ पर गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में गया। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वो स्ट्राइक करता है लाइक अ ड्रम, है ना। और उसके बाद वो जो वाइब्रेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो पहले जाता है आपके सबसे पहले बोन में, दैट इज़ मैलियस में। मैलियस से वो वाइब्रेशन जाता है इंकस में, और इंकस से वो वाइब्रेशन चले जाता है स्टेपिस में। ओके, सो दिस इज अबाउट द मिडिल ईयर। नाउ you can see here the structure of the middle ear, है ना। So it is a very delicate structure, you can see here, okay। So you can see there is the lateral process of malleolus is attached with the tympanic membrane, and the handle of malleolus is there, okay। It collects the vibration from the tympanic membrane. Now, in human anatomy, the eardrum or tympanic membrane is a thin cone-shaped membrane that separates the external ear from the middle ear. Its function is to transmit sound from the ear to the ossicles inside the middle ear and then to the oval window in the fluid-filled cochlea. सो ह्यूमन एनाटॉमी जब हम देखते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है एक थिन कोन शेप का मेम्ब्रेन है जो कि एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करने का काम करता है। ये आपके साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है थ्रू द एयर और वो ऑसिकल्स को वाइब्रेट करता है इनसाइड द मिडिल ईयर, और उसके बाद ओवल विंडो से होते हुए जो वाइब्रेशन है वो आपके फ्लूइड फिल्ड कॉक्लिया दैट इज़ इनर ईयर में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। सो इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन, फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन आउटर एंड द मिडिल ईयर and it vibrates in response to sound waves. So these are the function of the tympanic membrane, that is it forms the boundary between the outer and the middle ear. Second function is to vibrate in response to sound waves, and third function is to change its ossicles energy into the mechanical energy. So जो acoustic energy है उसको वो mechanical energy में क्या करती है, convert कर देती है। Okay, so this is the function of your tympanic membrane. सो जो ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं मिडिल ईयर में वो है आपके 3 स्मॉल बोन, मैलियस, इंकस एंड दी स्टेपिस, और इसको एक साथ हम लोग ऑसिकल्स बोलते हैं। सो दे आर 3 बोन्स इन द आइदर मिडिल ईयर दैट आर अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। दे सर्व टू ट्रांसमिट साउंड फ्रॉम द एयर टू द फ्लूइड फिल्ड लेबिरिंथ। सो इनर ईयर को हम लोग लेबिरिंथ बोलते हैं, कॉक्लिया को। सो आपका यहाँ से साउंड वेव्स जो है जैसे मैंने बताया था ट्रैवल होकर के कहाँ पर चले जाता है, फ्लूइड फिल्ड जो कॉक्लिया है वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। सो जो ऑसिकुलर चेन है दैट इज़ मैलियस, इंकस और स्टेपिस से बनता है। मैलियस इट इज़ अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये एक हैमर शेप्ड बोन होता है। जो इंकस होता है जिसको हम लोग एनविल भी बोलते हैं, एनविल शेप्ड बोन होता है और ये कनेक्ट करने का काम करता है, मिडिल जो बोन है। सो आपके मैलियस को आपके स्टेपिस से कनेक्ट करता है, इन बिटवीन होता है, मिडिल में होता है। और जो थर्ड बोन है दैट इज़ दिस स्टेपिस होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी में, और इसकी जो फुट प्लेट है दैट इज़ इंसर्ट्स इन ओवल विंडो ऑन दी मीडियल वॉल। और आपके ओवल विंडो से इसके फुट प्लेट्स जो रहते हैं अटैच्ड रहते हैं आपके मीडियल वॉल से, और ये आपके कनेक्टेड हो जाते हैं इनर ईयर से, कॉक्लिया से। So the function of ossicles is to focus, amplify vibration of tympanic membrane to smaller area, enables vibration of the cochlear fluid. So इसका मेन जो फंक्शन है ये फोकस करते हैं या फिर एम्पलीफाई करते हैं, वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो वाइब्रेशन को उन्होंने कलेक्ट किया है उसको, और उसको फिर ट्रांसमिट कर देते हैं कहाँ पर बेटा, आपके कॉक्लिया में। ठीक है, कॉक्लिया में एग्जैक्टली फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, हम लोग उसको पढ़ेंगे जब इनर ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नाउ दिस इज़ दी ऑसिकल्स। सो देखिए कैसे कनेक्टेड है ये एक दूसरे से। फर्स्ट जो है आपका हैमर शेप्ड बोन है दैट इज़ मैलियस, और बीच में आपका एनुअल शेप्ड बोन है इंकस, और थर्ड जो है आपका स्टेपिस है, और स्टिरप्स है और बेस दिख रहा है आपको स्टिरप का। सो आपका जो यही बेस है जो कि आपके ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर ऑफ द कॉक्लिया से अटैच्ड रहता है। सो वाइब्रेट जब होता है एक बोन तो वो दूसरे बोन को वाइब्रेट करता है, दूसरे बोन से तीसरे बोन में वाइब्रेशन जाता है, और वही वाइब्रेशन जो है फिर इनर ईयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो ये साउंड वेव्स है जो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन कहाँ पर जा रहे हैं, आपके ईयर में ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ यूस्टेशियन ट्यूब, मिडिल ईयर का एक सबसे खास बात हम लोग देखेंगे, आप लोग डायग्राम में देखिए, देयर इज़ एन यूस्टेशियन ट्यूब इज़ देयर, है ना। सो ऑल्सो कॉल्ड फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, इसको हम लोग फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि ये फेरिंग नेजोफेरिंग्स में ओपन होता है, और बिकॉज टिम्पैनिक इसलिए क्योंकि ये मिडिल ईयर में है। नाउ म्यूकस लाइंड कनेक्ट मिडिल ईयर कैविटी टू द नेजोफेरिंग्स, इक्विलाइजेस एयर प्रेशर इन द मिडिल ईयर एंड नॉर्मली क्लोज्ड ओपन्स अंडर दी सर्टन कंडीशंस may allow a pathway for infection. Children grow out of the most middle ear problem as this tube lengthen and become more
वर्टिकल, ठीक है। सो आपका जो मिडिल ईयर में एक ट्यूब दिख रहा है हमको, इसको यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं या फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब बोलते हैं। इसका इनर जो लाइनिंग है वो म्यूकस से लाइंड होता है और ये एग्जैक्टली आपका मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से कनेक्ट करने का काम करता है। सो ये एग्जैक्टली क्या करता है बेटा, जो प्रेशर है मिडिल ईयर में उसका प्रेशर को, एयर का जो प्रेशर है इक्वलाइज करता है, क्योंकि आपका ईयर कैनाल से, आप देखिए डायग्राम में, ईयर कैनाल से एयर जाता है आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ। सो अगर आपका ये ज़्यादा प्रेशर से एयर गया या साउंड वेव गया तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है। सो आपका यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू नेजोफेरिंग से जो एयर है वो कहाँ पर जाता है, आपके मिडिल ईयर में जाता है और दोनों तरफ का जो प्रेशर है उसको क्या करने का काम करता है, ये इक्वलाइज करने का काम करता है। सो दिस इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, दैट इज़ द इक्वलाइजर। एयर जो प्रेशर है उसको क्या करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दोनों साइड से इक्वलाइज करने का काम करता है। ओके, नाउ middle ear, the middle ear is open to the nasopharynx by the way of the auditory tube. Auditory tube मतलब कि eustachian tube, which is only the thickness of a pencil lead, है ना। पेंसिल को जब आप छीलते हैं उसका lid का जो thickness होता है उतना ही पतला है auditory tube का जो diameter है। Now if this tube is closed, the ear फील प्लग्ड अप। जब ये ट्यूब क्लोज हो जाता है, जब भी आपको सर्दी हुई होगी तब आपने देखा होगा नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सो ये ट्यूब जब प्लग हो जाता है तो ईयर में हमको कंजेशन जो है वो फील होता है ना। द फंक्शन ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब इज टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑफ द मिडिल ईयर एंड द आउटसाइड एयर सो द ईयर बोन्स कैन वाइब्रेट। और ये जो प्रेशर है ईयर के दोनों साइड वो मेंटेन करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड। सो तभी जब इक्वल प्रेशर रहेगा तभी जो ईयर बोन्स हैं, मैलियस इंकस एंड स्टेपिस, वो वाइब्रेट हो पाएंगे। Tubes are put in the tympanic membrane to drain fluid in kids with the frequent ear infection. सो आपका जिन बच्चों को ईयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बच्चे बहुत प्रोन होते हैं क्योंकि उनको कफ अप करने का या स्नीज़ करने का और उनका जो एक्सपेक्टोरेट करने का जो क्षमता होता है वो कम होता है, तो मे भी आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू इन्फेक्शन मिडिल ईयर में जा सकता है। सो बहुत चांसेस होते हैं कि किड्स में जो इन्फेक्शन है वो डेवलप हो जाए। सो इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू अगर फ्लूइड कुछ जमा हो गया है उसको क्या किया जाता है, ड्रेन किया जाता है, इन्फेक्शन अगर हो गया है तो। So this is about the auditory tube. So this is the structure of the middle ear. You can see here external acoustic meatus, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मैलियस इंकस एंड स्टेपिस है बेटा, यहाँ पर आपका यूस्टेशियन ट्यूब ओपन हुआ है यहाँ पर, है ना। और वहाँ पर देखिए आपका मेस्ट्रॉइड एंट्रम जो है उसकी ओपनिंग वहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपका जो स्टेपिस है, जब सबसे छोटा जो बोन है वो आपके जो कॉक्लिया जो है उससे क्या हो जाता है, ओवल विंडो के थ्रू अटैच हो जाता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर मिडिल ईयर। ओके, नाउ studying about the inner ear. Okay, so the inner ear exists within the temporal bone, है ना, petrous portion, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में इनर ईयर रहता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज़ लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड द बोनी लेबिरिंथ। सो एक कैविटी के अंदर में है ये आपके टेम्पोरल बोन के, और उसको हम लोग बोनी लेबिरिंथ बोलते हैं, है ना। इट इज़ फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ विच इज़ सिमिलर टू CSF। सो जो ये आपका जो स्ट्रक्चर है इनर ईयर का, वो आपका जो बोन है अंदर से किससे भरा हुआ है, पेरीलिम्फ से भरा हुआ है, और एक लिक्विड है ये, और जो सिमिलर जिसका जो कंपोजिशन है दैट इज़ सिमिलर टू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर, आप लोग देख सकते हैं। और आपका एक बोनी आउटर कवरिंग है दैट इज़ बोनी लेबिरिंथ, और अंदर में जो मेन ऑर्गन दिख रहा है आपको इनर ईयर में दैट इज़ सेमी सर्कुलर कैनाल है, कॉक्लिया है ना। ये सारा किस में आएगा, आपके मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर में आता है। सो ये स्ट्रक्चर है इनर ईयर का जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो द इनर ईयर और लेबिरिंथ कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड द बैलेंस। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इनटू 2 पार्ट्स दैट इज़ बोनी लेबिरिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो आउटर बोनी जो कवरिंग है वो बोनी लेबिरिंथ है, और जो इनर पार्ट है वो क्या कहलाता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। सो इनर जो ईयर है उसको हम लोग ऑर्गन ऑफ हियरिंग और बैलेंस भी कहते हैं। नाउ बोनी लेबिरिंथ का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज़ अ कैविटी विद इन द टेम्पोरल बोन लाइंड विद द पेरियोस्टियम। इट इज़ लार्जर एंड एनक्लोजेस द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ ऑफ द सेम शेप दैट फिट्स इनटू इट लाइक अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब। सो आपका जो बोनी लेबिरिंथ है टेम्पोरल बोन का ही पार्ट है जो पेरियोस्टियम से लाइंड होता है इनर साइड से बेटा, और ये आपका इतना लार्ज होता है कि आपके मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को अपने अंदर में ये ऑक्यूपाई कर सके। सो इसका जो शेप होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के शेप के जैसा ही होता है, जस्ट लाइक
अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब, है ना। सो आपका बोनी लेबिरिंथ के अंदर में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ रहता है, सेम उसी शेप और स्ट्रक्चर के अंदर में, जैसे एक ट्यूब के अंदर में दूसरा ट्यूब आपने डाल दिया। बिटवीन द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ देयर इज अ लेयर ऑफ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड द पेरिलिम्फ, और इन दोनों के बीच में, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिलिम्फ, एंड विद इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ देयर इज अ सिमिलर वाटरी फ्लूइड कॉल्ड द एंडोलिम्फ। सो आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर में भी एक फ्लूइड है जिसको हम लोग एंडोलिम्फ कहते हैं। सो बोनी लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ, बोनी लेबिरिंथ के 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज द वेस्टिब्यूल, that is expanded part nearest the middle ear, oval and round window are located in the lateral wall. It contains utricle and saccule important for the balance. So आपका इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वेस्टिब्यूल है, दूसरा जो है वो कॉक्लिया, और थर्ड जो है दैट इज़ द सेमी सर्कुलर कैनाल। सो ये बोनी पोर्शन है और आपके एकदम नियर होता है ये मिडिल ईयर के। ओवल और राउंड विंडो जो होते हैं लोकेटेड होते हैं इसके लैटरल वॉल से, और इसके अंदर वेस्टिब्यूल के अंदर में मेन जो ऑर्गन है आपका मेम्ब्रेनस पार्ट का, वो यूट्रिकल और सैक्यूल इसके अंदर में रहते हैं जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ कॉक्लिया सेकेंड पोर्शन है जो कि आपके स्नेल आपने देखा होगा, उससे सेम दिखाई देता है वो, और स्नेल के शेल जैसा ये दिखाई देता है बिकॉज बोनी पोर्शन है। नाउ सेमी सर्कुलर कैनाल है। सो 3 ट्यूब जो है अरेंज रहते हैं और आपके सेमी सर्कुलर शेप में रहते हैं, इसलिए उसको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। सो ये आपके बोनी पार्ट में रहेगा, और सेम आपको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भी ये तीनों पार्ट आपको मिलेंगे, है ना। नाउ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ डेलिकेट ट्यूब फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। सो आपके यहाँ पर भी एक डेलिकेट ट्यूब है जो एंडोलिम्फ से फिल्ड है। सो इट इज़ ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट जो है वो वेस्टिब्यूल है जिसके अंदर में एग्जैक्टली यूट्रिकल एंड सैक्यूल होता है, और आपका सेकेंड पार्ट है जो एग्जैक्टली कॉक्लिया है, और जो थर्ड पार्ट है वो है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। सो व्हाट इज़ डिफरेंट इन द पार्ट्स बिटवीन आपके बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के पार्ट में क्या डिफरेंस है। जो बोनी लेबिरिंथ होता है उसमें आपके जो 3 पार्ट है वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल, नाम उनका वही है बट एग्जैक्टली उसके अंदर में ऑर्गन्स रहते हैं। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो है एग्जैक्टली दे आर दी ऑर्गन्स, है ना, ये एग्जैक्टली वो ऑर्गन है जो बोनी लेबिरिंथ के अंदर में रहते हैं, जस्ट ट्यूब इनसाइड द ट्यूब, है ना। सो ये वो ऑर्गन्स हैं जो बोनी लेबिरिंथ के अंदर में रहते हैं। वेस्टिब्यूल दैट इज यूट्रिकल एंड सैक्यूल, कॉक्लिया एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल। सो दिस इज़ द इनर ईयर। आप डायग्राम में देखिए, आपका आउटर जो बोनी पार्ट दिख रहा है वो बोनी लेबिरिंथ है बेटा, और आपका ब्लू से जो डिनोटेड है ग्रेइश जो दिख रहा है वो बोनी लेबिरिंथ है, और जो एग्जैक्टली जो पर्पल से दिख रहा है वो है आपका ग्रेइश पर्पलिश जो दिखाई दे रहा है वो बोनी लेबिरिंथ है, और जो ब्लू से हाईलाइटेड है वो है आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। सो थ्री पार्ट्स आर देयर। जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द यूट्रिकल एंड सैक्यूल। आप लोग देखिए डायग्राम में ध्यान से, आपका यूट्रिकल एंड सैक्यूल, ये है आपका यूट्रिकल और ये है आपका सैक्यूल, है ना, और ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर देयर। और आपका यहाँ पर देखिए स्नेल शेप का आपको क्या दिख रहा है, कॉक्लिया दिखाई दे रहा है। सो ये इनर ईयर का स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ कॉक्लिया, द फर्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ कॉक्लिया। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉक्लिया कंटेन्स 3 कंपार्टमेंट। जब हम लोग क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं कॉक्लिया को, उसमें 3 कंपार्टमेंट है बेटा। सो द फर्स्ट इज स्केला वेस्टिबुली, सेकेंड इज द स्केला मीडिया और कॉक्लियर डक्ट, एंड थर्ड वन इज द स्केला टिम्पैनी। So cochlear duct is the part of membranous labyrinth and is triangular in shape. So cochlear duct जो रहता है वो है membranous labyrinth का part और ये triangular shape का होता है. On the basilar membrane or base of the triangle are supported cell or specialized neuron cells are there, that is called the cochlear hair cells containing auditory receptors, है ना. So आपका जो basilar membrane है इसके अंदर का जब कट सेक्शन में हम लोग देखेंगे तो उसमें कुछ स्पेशल टाइप के न्यूरॉन सेल्स हैं, सपोर्टिव सेल्स है जिसको हम लोग कॉक्लियर हेयर सेल्स बोलते हैं, और इसी में ही आपका ऑडिटरी रिसेप्टर्स होता है, ठीक है. और उसके एक्सॉन्स रहते हैं आपके क्रेनियल नर्व एर्थ, है ना, वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो नर्व है उसके एक्सॉन्स वहाँ पर रहते हैं. दीज सेल्स फ्रॉम दी स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉटाई, और यही जो है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉटाई का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है. द सेंसरी ऑर्गन दैट रिस्पॉन्ड टू वाइब्रेशन बाय इनिशिएटिंग nerve impulses that are then perceived as hearing within the brain. और यही वो आपका हेयर सेल है जब ये क्या होता है, वाइब्रेशन से रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज इससे आपके 8th क्रेनियल नर्व के रिसेप्टर्स के एक्सॉन्स जो हैं जुड़े हुए हैं. जब ये वाइब्रेट होता है और रिस्पॉन्ड करता है तो ये आपका वाइब्रेशन जो है इन्हीं नर्व्स के थ्रू ट्रैवल होकर के ब्रेन में जाता है और तब हम हियरिंग को क्या करते हैं, परसीव करते हैं. द स्टेपिस इज अटैच टू द ओवल विंडो एंड द वाइब्रेशन कॉजेज द पेरिलिम्फ टू वाइब्रेट
द हेयर सेल हियर ट्रांसमिट दिस वाइब्रेशन। सो जैसे ही आप मिडिल ईयर में आ जाइए, वहाँ पर ओवल विंडो है, जैसे ही आपका स्टेपिस अटैच ओवल विंडो से और वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करता है ओवल विंडो से, सो आपका ओवल विंडो से आपका जो वाइब्रेशन है किस में एंटर करता है, पेरिलिम्फ में एंटर करता है। पेरिलिम्फ जो है बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच का फ्लूइड है। सो जब पेरिलिम्फ वाइब्रेट होगा, सो उसके थ्रू जो हेयर सेल्स है उसमें क्या हो जाता है, वाइब्रेशन चला जाता है। नाउ देयरफॉर द हेयर सेल्स इन दिस रीजन आर रिसेप्टर्स फॉर द हियरिंग। सो इस जगह पे हेयर सेल्स जो प्रेजेंट हैं वो आपका एग्जैक्टली रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं हियरिंग वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए। द हेयर सेल्स आर कनेक्टेड टू दी क्रेनियल नर्व एट्थ क्रेनियल नर्व से कनेक्टेड रहते हैं हेयर सेल्स। मेनली जो है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है विच टेक्स द सिग्नल टू द ब्रेन। देयरफॉर द कॉक्लिया इज वेयर द हियरिंग रिसेप्टर्स आर लोकेटेड। सो द कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हियरिंग ऑफ साउंड्स। However, the ear does more than just hear. It is also responsible for balance and the equilibrium. So आपका जो कॉक्लिया है ना, जहाँ पर मेन आपका रिसेप्टर्स लोकेटेड है, हेयर सेल्स लोकेटेड है हियरिंग के लिए, सो वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली हियरिंग के लिए। और जो बैलेंस वाला पोर्शन है ना, वो आपका हाउएवर द ईयर डज मोर देन जस्ट हियरिंग सिर्फ नहीं करता, इट इज़ ऑल्सो फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड द इक्विलिब्रियम दैट इज़ डन बाय द यूट्रिकल एंड द सैक्यूल। ओके, नाउ दिस इज़ द कट सेक्शन इमेज ऑफ योर कॉक्लिया, है ना। कट सेक्शन इमेज जब आप देखेंगे कॉक्लिया का, सो मैंने बताया था आप लोगों को कि वहाँ एक बेसिलर मेम्ब्रेन होता है। सो यू कैन सी हियर, ये ऑरेंज कलर का आपका बेसिलर मेम्ब्रेन है और उसमें आपका हेयर सेल्स हैं बेटा। हेयर सेल्स दिख रहा है आप लोगों को, आपका पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, आपके हेयर सेल्स हैं, है ना। और ये हेयर सेल से आपका जो कॉक्लियर नर्व है, देखो ये वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व यहाँ से आई है, ये जब वाइब्रेट होते हैं सो आपका जो नर्व इम्पल्स है हियरिंग का, वाइब्रेशन जो है कॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में चला जाता है और तब आप हियरिंग को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। सो दिस इज़ द कट सेक्शन इमेज ऑफ योर कॉक्लिया। ठीक है, जो मेन ऑर्गन है वहाँ पर, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। दिस इज़ द ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ओके, नाउ वेस्टिबुलर सिस्टम, दिस सिस्टम रेगुलेट्स बैलेंस, इट इज़ ऑल्सो विद इन द इनर ईयर सेमी सर्कुलर कैनाल। सो वेस्टिबुलर जो सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्टली बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इसमें है सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 of them all in different planes, determines movement in 3 planes. सो आपका सेमी सर्कुलर जो कैनाल बना हुआ है वो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस जो प्लेन्स है उसका मूवमेंट को ये आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। विद इन ईच सेमी सर्कुलर कैनाल इज एंडोलिम्फ एंड हेयर सेल्स विच कनेक्ट्स द नर्व दैट गो टू द सेरिबेलम। सो यहाँ पर आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, उसके अंदर में एंडोलिम्फ है बेटा और यहाँ पर भी सेम टाइप के हेयर सेल्स प्रेजेंट है ना। और जो कनेक्ट करता है आपके नर्व को, वो कौन सा नर्व है, वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ नर्व, जो कि आपके सेरिबेलम में जाता है, बैलेंस आपको इक्विलिब्रियम और बैलेंस को जो कोऑर्डिनेट करता है। व्हेन यू मूव इन वन डायरेक्शन लाइक स्लाइडिंग अक्रॉस द रूम, द फ्लूइड स्लोशेस लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड इट मेक्स द हेयर सेल मूव। जब हम मूव करते हैं तो हमारे इनर ईयर के सेमी सर्कुलर कैनाल में भी जो हेयर सेल्स हैं वो भी मूव करते हैं और ये मूवमेंट जो है कॉक्लियर आपके जो ब्रांच है, सॉरी वेस्टिबुलर जो ब्रांच है उसके थ्रू आपके सेरिबेलम में जाता है और तब आप मूव हो रहे हैं, आपका मूवमेंट आप क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं और बैलेंस और इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द यूट्रिकल एंड सैक्यूल। So attaches to the semicircular canal are 2 joint structure called the utricle and the saccule. So inner ear में हम लोग बीच में 2 छोटे स्ट्रक्चर देखे थे, यूट्रिकल और सैक्यूल. So these also contains hair cell, है ना, एंड एंडोलिम्फ. इसके अंदर में हेयर सेल्स होता है और एंडोलिम्फ होता है. विद इन द एंडोलिम्फ हियर आर ओटोलिथ्स. सो यूट्रिकल और सैक्यूल की यहाँ पर खासियत है कि इसके एंडोलिम्फ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओटोलिथ्स, है ना. ओटो का मतलब होता है ईयर और लिथ का मतलब होता है रॉक. रॉक का मतलब पत्थर. सो एग्जैक्टली कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, है ना. इन हेयर सेल्स पे क्या है, कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं. व्हेन यू स्टैंड परफेक्टली अपराइट दीज ओटोलिथ्स फॉल डायरेक्टली डाउन एंड बेंड द हेयर सेल्स. जब हम क्या होते हैं, अपराइट स्टैंड होते हैं, तो जो ये ओटोलिप्स जो प्रेजेंट है इसमें वो क्या होते हैं, डाउन होकर के हेयर सेल को बेंड कर देते हैं, है ना. और स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन है आपके हेयर सेल्स ऑन द लोअर सेल्स. व्हेन यू टिप योर हेड टू द साइड यू विल स्टिमुलेट द हेयर ऑन दैट साइड. जब हम क्या करते हैं, अपने हेड को साइड में करते हैं, सो आपके हेयर सेल क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं. नाउ द ओटोलिथ स्टिमुलेट्स द हेयर सेल्स टू टेल यू व्हाट पोजीशन यू
योर हेड इज इन एंड गिव यू अ सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब हम मूव हो रहे हैं तब यही ओटोलिथ जो है मूव होते हैं, और मूव होने के बाद इसका जो सेंसेशन है वो आपके वेस्टिबुलर ब्रांच के थ्रू ब्रेन में जब जाता है तब हम सेंस कर पाते हैं कि हमारा जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम में है। ओके, सो दीज आर द मेन ऑर्गन ऑफ द इक्विलिब्रियम। देयरफॉर द हेयर सेल in this region are receptors for equilibrium and the otoliths are an essential component of this process। सो आपके जो हेयर सेल है इस रीजन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ओटोलिथ ही है जो मूव हो करके झुकाता है हेयर सेल्स को, और उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो है वो क्या होता है, परफॉर्म होता है। सो आपके कॉक्लिया में भी हेयर सेल्स था जो हियरिंग को लेकर के गया। नाउ आपके सेमी सर्कुलर कैनाल में भी आपका हेयर सेल्स था जो कि आपकी बैलेंस को क्या किया, एडजस्ट किया। नाउ यहाँ पर यूट्रिकल एंड सैक्यूल में भी हेयर सेल्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, क्लियर। नाउ दिस इज़ दी ओटोलिथ्स। देखिए डायग्राम आप, हेड अपराइट है तो हेयर सेल्स को देखिए आप, ओटोलिथ्स को देखिए, और जब फोर्स टू ग्रेविटी, जब हेड को हम क्या कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं, सो दीज ओटोलिथ्स आर ऑल्सो मूविंग, है ना। सो ओटोलिथ्स जब मूव हो रहे हैं तब ये जो सेंसेशन है आपका कहाँ जाता है बेटा, ब्रेन में जाता है आपके वेस्टिबुलर ब्रांच के थ्रू, और आपका इक्विलिब्रियम और बैलेंस आप क्या कर पाते हो, मेंटेन कर पाते हो, सेंस कर पाते हो। नाउ सेंट्रल ऑडिटरी सिस्टम। सो सेंट्रल ऑडिटरी जो सिस्टम होता है, ऑडिटरी मीन्स हियरिंग सिस्टम, सो 8th क्रेनियल नर्व है और दैट इज़ द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। Bundle of nerve fibers are there. They travel from cochlea through the internal auditory meatus to the skull cavity and the brain stem. So ये आपका इंटरनल ऑडिटरी meatus से होते हुए आपके स्कल कैविटी के अंदर एंटर करते हैं और ब्रेन स्टेम में ये एंटर करते हैं। That carry signals from the cochlea to the primary auditory cortex with continuous processing along the way। और आपका कॉक्लिया से जो इम्पल्सिस को, सिग्नल को इन्होंने रिसीव किया है उसको वो कैरी करके आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स में लेकर के जाते हैं ब्रेन में, और अलॉन्ग द वे वो कंटिन्यूस प्रोसेस में रहते हैं। नाउ जब ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंच गया, दैट इज़ वर्निक्स एरिया विद इन दी टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन। टेम्पोरल लोब में हमारा हियरिंग एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्निक्स एरिया, और यहाँ पर जब पहुँचता है आपका ये स्टिमुलाई जो सिग्नल है, तब साउंड इंटरप्रिटेड बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस एंड दी एसोसिएशन। सो साउंड जो है उसको आप क्या कर पाते हो, परसीव कर पाते हो। सो दिस इज़ दी सेंट्रल ऑडिटरी सिस्टम। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग इज़ देयर। सो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे कैसे हम सुन पाते हैं। सो अकोस्टिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स इज चैनल्ड इनटू द ईयर कैनाल बाय द पिन्ना। सो जो एकॉस्टिक एनर्जी है वो आपके पिन्ना से ट्रैवल करते हुए साउंड वेव्स में, है ना, हेयर उसको ट्रैवल करवा रहा है, जो एयर है उसको ट्रैवल करके लेकर के जा रहा है, वो आपके पिन्ना के थ्रू ईयर के अंदर में एंटर करती है। नाउ साउंड वेव्स हिट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड कॉजेज इट टू वाइब्रेट लाइक अ ड्रम, चेंजिंग इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे ही आपका साउंड वेव जो एयर के साथ मिक्स है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करता है आफ्टर हिटिंग इट लाइक अ ड्रम, सो आपका जो अकॉस्टिक एनर्जी है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ द मैलियस विच इज़ अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू ऑसिकल्स इनटू मोशन। द स्टेपिस मूव्स इनटू आउट ऑफ द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया क्रिएटिंग अ फ्लूइड मोशन और हाइड्रोलिक एनर्जी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो मैलियस है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है वो क्या करता है, ऑसिकल्स को मूव करता है, वाइब्रेट करता है, फिर मैलियस से इंकस और इंकस से स्टेपिस में जाएगा वो वाइब्रेशन, और स्टेपिस जो है ओवल विंडो के थ्रू कॉक्लिया में इस वाइब्रेशन को दे देगा, और तब वहाँ पर जो फ्लूइड है वो मूव होने लगता है। देन दिस एनर्जी, कौन सी एनर्जी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रो मीन्स वाटर। सो अकॉस्टिक एनर्जी पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करने के बाद मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है इनर ईयर में जब जा रही है तो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। नाउ द फ्लूइड मूवमेंट कॉजेस मेम्ब्रेन इनटू द ऑर्गन ऑफ कॉटाई टू शेयर अगेंस्ट द हेयर सेल। सो जो फ्लूइड है मूव हो रहा है ना, कहाँ पर, आपके मेम्ब्रेन्स के अंदर में आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, आपके हेयर सेल्स हैं, वो सब उस मूवमेंट से क्या हो रहे हैं, स्टिमुलेट हो जा रहे हैं। दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज सेंट अप द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। और ये सारा जो है आपका जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसके थ्रू जो वाइब्रेशन आपके हेयर सेल को वाइब्रेट किया, वो वाइब्रेशन जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता है, और ऑडिटरी नर्व दैट इज़ दी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, है ना, सो कॉक्लियर ब्रांच के थ्रू आपका ब्रेन में ये पहुंच जाता है। नाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स इट एज अ साउंड, और उसके बाद ब्रेन में जाने के बाद आप साउंड को क्या कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। वर्निक्स एरिया इन द टेम्पोरल बोन। नाउ अबाउट दी
फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस, बैलेंस कैसे करता है हमारा ईयर. सो द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द वेस्टिब्यूल, है ना, दो चीज़ें हैं वहाँ पर, एक सेमी सर्कुलर कैनाल है और दूसरा है वेस्टिब्यूल, दैट इज कॉल्ड यूट्रिकल एंड द सेक्यूल, आर कंसर्न विद द बैलेंस. एनी चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द हेड कॉजेस मूवमेंट इन द पेरिलिम्फ and endolymph which bend the hair cells and stimulate the sensory receptors in the utricle saccule and the ampulla. So जब भी हमारा हेड का मूवमेंट क्या होता है, चेंज होता है, ऑन दैट टाइम सेम पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ भी क्या होता है, मूव होते हैं, और उस समय में जो हेयर सेल्स हैं बेटा वो क्या होते हैं, बेंड होते हैं, जिसके कारण से जो हेयर सेल में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं यूट्रिकल सैक्यूल और एम्पुला वाले पोर्शन में सेमी सर्कुलर कैनाल में, सो वो हेयर सेल्स क्या होते हैं आपके स्टिमुलेट हो जाते हैं. नाउ द रिजल्टेंट नर्व इम्पल्सर आर ट्रांसमिटेड बाय द vestibular nerve which joins to the cochlear nerve to form the vestibulocochlear nerve. अब ये जो नर्व है, सिग्नल जो है आपके वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ दी जो नर्व है ना, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व का वेस्टिबुलर ब्रांच में ट्रांसमिट होता है, और वेस्टिबुलर ब्रांच कॉक्लियर नर्व को ज्वाइन होकर के वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व बनाता है. अब ये वेस्टिबुलर ब्रांच पासेस फर्स्ट टू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस देन टू द सेरिबेलम, और ये फाइनली कहाँ पर पहुँचते हैं सिग्नल को लेकर के, सेरिबेलम में. नाउ द सेरिबेलम ऑल्सो रिसीव्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द आई एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स, दैट इज द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्केलेटल मसल एंड द जॉइंट. सो आपका ईयर अकेले क्या नहीं कर सकता, बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता. सो आपका पहले ये पहुंचा, आपका वेस्टिबुलर ब्रांच पहुंच गया स्टिमुलाई को लेकर के कि आपका हेड मूव हुआ है करके, और उसके बाद से आपका सेंसरी रिसेप्टर जो आई में प्रेजेंट है, और दूसरा आपके प्रोपियोसेप्टर्स बोलते हैं हम लोग, सेंसरी रिसेप्टर जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग प्रोपियोसेप्टर्स बोलते हैं. सो उनका जो मूवमेंट है वो सब एक साथ जब कहाँ पहुँचता है, आपके सेरिबेलम में पहुँचता है. Now impulse from these three sources are coordinated and efferent nerve impulses pass to the cerebellum and to the skeletal muscle. So आपका ये सारे जो तीन एरियाज हैं, एक तो ईयर हो गया, दूसरा आई हो गया, और तीसरा कहाँ पर से आपके मसल्स एंड आपके बोन्स के थ्रू, है ना. सो वहाँ से इम्पल्सेस आपके सेरिबेलम में जाते हैं, और वहाँ से फिर इम्पल्सेस पास होते हैं सेरिबेलम से, और कहाँ पर जाते हैं आपके स्केलेटल मसल्स में. दिस रिजल्ट्स इन अवेयरनेस ऑफ द बॉडी पोजिशन, और जिसके कारण से आप अवेयर हो पाते हैं अपने बॉडी पोजिशन से, मेंटेनिंग द अपराइट पोस्चर एंड फिक्सिंग द आई ऑन द सेम पॉइंट इंडिपेंडेंटली ऑफ हेड मूवमेंट, और जिसके कारण से हम अपने आई को फिक्स कर पाते हैं, बॉडी को अपराइट पोस्चर में मेंटेन कर पाते हैं. और बॉडी को अपराइट पोस्चर में कौन मेंटेन करेगा, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और हेड जो है आपका प्रॉपर मूवमेंट करता है. ठीक है. सो इस तरह से आपका जो वेस्टिबुलर ब्रांच है वो आपका जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम और बैलेंस जो है बॉडी का, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर. ओके.